Okay, let's just shift focus for a wee bit to our personal finance segment. We have our guest Sumit Vaid of Freedom Financial Planners who joins us as always. Hi Sumit, welcome to the show. You know, the IRDA has issued norms whereby independent rating agencies will now be allowed to evaluate the ULIPs or the unit-linked insurance plans, much to the relief of many holders, I'm sure. This is to help policyholders assess and compare various products. Can you take us through whether there are any loopholes in this and what these ratings will imply and how should investors go about deciphering them? It's a great move, I think, not only for the end investor but also for financial planners and advisors like us, because in past what used to happen in unit-linked insurance plan was there was no common platform or a rating agency or a information access which was able to help us compare all ULIPs available on a very even ground. To give you an example, various ULIPs have various kind of expense structures. Various ULIPs are sitting on various kind of underlying funds which is generating returns. So when you're comparing apple to apple, it used to get compared apple to oranges. So I think it's a big move towards transparency, and transparency is a big thing which is required for creating trust in mind of people. So I think it's a great move, and what it means for end customer is that when he's buying ULIP, which is one most important thing in any insurance policy which should be compared, is the terms and the features across the board availability. So I'm buying a ULIP from a particular manufacturer, I should be able to compare it with the B ULIP of B manufacturer in terms of expense structures, in terms of what kind of loadings are, in terms of what has been the past performance, in terms of what kind of a portfolio does it hold. I should be able to dissect it and do that because it's eventually giving me access to market. So I think it's a big news. Okay, who does the rating? Who will, okay, sorry, Suvit, what I was asking was who will rate the various products? Is it a rating agency or will there be some other independent? Okay, I think Sumit is not able to hear us. We'll do one thing, we'll fix that problem in a minute and come back with some viewer questions as well. Welcome back. Okay, that's cabinet note floated on rejig in centre funded schemes. Not very important at the moment. The more important one was the Arvind Mayaram committee, which will head a committee comprising one SEBI member, one RBI deputy governor and a DIPP member, which will decide the implementation of that rule distinguishing FII and FDI investments. When FII investment in a company is, when foreign investment in a company is less than 10%, it will be FII. When it's more than 10%, it's FDI. The implications and how it will pan out, that committee has been appointed today. Important because that would make a seminal difference, especially to companies like real estate, where FDI with call options have got into trouble. So these could be important implications for certain sectors, to be sure. As well, that committee will look at several sectors where there is 26% restrict caps on foreign investment. The committee will look at increasing them. So that's an important committee to watch out for, but it's only a panel that has been appointed as of now. We were discussing about ULIPs and the fact that independent agencies will rate them and give us an idea as to what are the hidden costs involved, help us compare them. Anand Babbar from Raebareli is waiting by to ask some questions on his portfolio. Sumit Vaid is our expert. Anand Babbar, go ahead. आपका question क्या है? मैं आनंद बब्बर बरेली से बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपने 4 साल के बेटे के लिए एजुकेशन के लिए फंड इकट्ठा करना चाहता हूँ। इस गोल को अचीव करने के लिए या तो मेरे पास ऑप्शन है जो आजकल मार्केट में चले हैं, एजुकेशन प्लान लेना चाहिए मुझे, या वेरियस कंपनी के एडवाइजर आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि फिक्स इनकम गारंटीड प्लान कोई आजकल आ रहा है जिसमें 6 या 7 ईयर्स तक आपको एवरी ईयर कुछ प्रीमियम देना होता है और 10th ईयर के बाद कंपनी पे आउट देना शुरू करती है, जो हर तीसरे साल बाद वो पे आउट देती है, जो कि एक फिक्स इनकम होती है प्लस प्लस कुछ बोनस उसके साथ ऐड करे जाते हैं। तो इनमें से कौन सा चूज करना चाहिए? क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने SIP और MF में काफी सारे इन्वेस्टमेंट किया था 2010 में, मगर इसमें कोई भी ग्रोथ, इतनी भी ग्रोथ नहीं मिली है कि इन्फ्लेशन को बीट भी किया जा सके।
तो क्या अगेन इन एजुकेशन प्लान यूलिप वगैरह में जाना चाहिए गारंटेड प्लान में, या फिर कोई अदर ऑप्शन एजुकेशन उसके लिए लेना चाहिए फंड इकट्ठा करना? आनंद जी, दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आपके ऑब्जर्वेशंस बहुत ही करेक्ट हैं और आपके डाउट्स ये एजुकेशन प्लान और ये फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट प्लान के पर जो आपके डाउट्स हैं वो सभी के डाउट्स हैं। मिस्टर सुमित वैद इज द बेस्ट पर्सन टू एक्सप्लेन इट। गो अहेड सुमित। आनंद जी, जैसा कि आपने अपने प्रश्न में पूछा कि मेरे को एजुकेशन प्लानिंग करनी है, तो एक एजुकेशन जो गोल है उसका एक ड्यूरेशन होता है। तो सबसे पहले तो अपना आप ड्यूरेशन डिसाइड कर लीजिए। मान लीजिए कि 8 साल का ड्यूरेशन है आपको, और आपको आज के टाइम पे कितना एजुकेशन चाहिए। आप किसी की ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन प्लान कर रहे हैं, मान लीजिए कि आज की कॉस्ट उसकी 10 लाख रुपए है, सो 8 साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से वो 10 लाख की कीमत बढ़ के हो सकता है 15, 16 या 14 लाख रुपए हो जाए। तो हम बोलते हैं कि हमें 15 लाख रुपए अजम्पशन के लिए जमा करने हैं अगले 8 साल में। अब इसको जमा करने के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि किस तरह का एसेट क्लास लें। इक्विटी में पैसा डालें, फिक्स्ड इनकम में डालें, या फिर गोल्ड या किसी अदर कमोडिटी में डालें। तो पहला तो ये एसेट एलोकेशन चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार एसेट एलोकेशन का हमें आइडिया होता है आनंद जी, उसके बाद हम प्रोडक्ट चूज करते हैं। अब प्रोडक्ट के अंदर हम म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए हम एंडोमेंट प्लान ले सकते हैं जो इंश्योरेंस के होते हैं, जिसे आप चिल्ड्रन प्लान बोलते हैं, या यूनिट लिंक प्लान ले सकते हैं। ना इन तीनों प्रोडक्ट्स के अपने बेनिफिट और नुकसान है। म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है, कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है, ओपन एंडेड है, आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं, बट उसमें किसी भी तरह के इंडिकेटिव रिटर्न या गारंटीड रिटर्न नहीं होते हैं। अगर आप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के साथ भी म्यूचुअल फंड जैसा ही ओपन एंडेड कंस्ट्रक्ट होता है, मगर 5 साल का लॉक इन होता है, उसके साथ में इंश्योरेंस के कुछ बेनिफिट मिलते हैं आपको। और अगर आप एंडोमेंट प्लान लेते हैं, जो जैसे कि आप अभी कुछ गारंटीड रिटर्न के बारे में बात कर रहे थे, वो गारंटीड नहीं होता, वो इंडिकेटिव होता है, जिसके अंदर पास्ट ट्रैक परफॉर्मेंस के ऊपर ये बोला जाता है कि अमूमन देखा गया है कि हम आपको 6 से 7% का रिटर्न देते हैं, और हो सकता है हम आपको बोनस दें। ये 3 तरह के प्लान हैं, इनको आपको चूज करना है अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अपनी एबिलिटी वॉलेटिलिटी को झेलने के हिसाब से, और उस गोल की प्रायोरिटी के हिसाब से। अगर मेरा कहना सुनेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि गोल प्लान जो खासकर चिल्ड्रंस एजुकेशन है उसके अंदर आप म्यूचुअल फंड के साथ ही लें, बिकॉज ये लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, लॉन्ग टर्म में ज्यादा अच्छा रहता है, और इंश्योरेंस लेनी है तो आप अलग से लीजिए। अगर आप 2010 का एग्जाम्पल लेते हैं तो अभी आपने देखा है कि 2010 से 2012 के बीच में काफी हद तक मार्केट रिवाइव हुई है, और काफी हद तक जो इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस है म्यूचुअल फंड्स की वो दिख रही है। खासकर अगर आप फिक्स्ड इनकम फंड देखें तो उसमें कई एक ऐसे फंड है जो डबल डिजिट में भी रिटर्न दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं देते हैं। और ये भी बात मान लिया, अगर म्यूचुअल फंड ने रिटर्न नहीं दिया मार्केट से तो यूलिप भी रिटर्न नहीं दे पाएगा। एंडोमेंट में जरूर फायदा रहेगा, बट कम रिटर्न है, कॉस्ट ज्यादा है। चॉइस आपकी रहेगी। सबसे पहला चॉइस, गोल बनाइए, अमाउंट बनाइए, ड्यूरेशन बनाइए, और एसेट एलोकेशन कीजिए। और एसेट एलोकेशन कैसे होने चाहिए सुमित? शुड ही पुट लाइक say 50% in fixed income or in debt mutual fund, and 50% or 40% in equity mutual fund, and 10% in a gold fund? If you can give him an indicative, because he's speaking about a 4-year-old child, you can have some guess about his age, so maybe you could give him an advisory asset allocation in within the mutual fund. श्योर, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। 4 साल का बच्चा है, 16 साल की उम्र तक की एजुकेशन प्लानिंग हमें करनी चाहिए कि 12 साल बाद हमें पैसा चाहिए होगा। 12 साल एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म पीरियड है। तो हमारी सजेस्टेड एसेट एलोकेशन रहेगी, आप 70% इक्विटी में डालिए, 20% फिक्स्ड इनकम में डालिए, और 10% गोल्ड में डालिए। ये जो इक्विटी ओरिएंटेड एसेट एलोकेशन है वो आपका एवरेज रिटर्न, अगर इक्विटी को एज्यूम करें कि उसमें 14 से 15% का रिटर्न निकलेगा, फिक्स्ड इनकम में 7 का, और गोल्ड में ओवर अ पीरियड टाइम 9-10 का, आपका 12 से 12.5% का, 12 से 12.5% की एजम्पशन है रिटर्न की। तो एक ये बेस एसेट एलोकेशन है, इससे आप काम शुरू कर सकते हैं, और इसको हर साल रिव्यू कीजिए, बिकॉज पोर्टफोलियो की एक्चुअल रिव्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा बहुत भारी सजेशन है, आपको एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर चूज कीजिए जो आपको ये गोल एलोकेशन को ट्रैक करने में मदद करे। Fair enough. Thanks a lot, Sumit, for that comprehensive advice, which I'm sure is going to help many of us. Let's take a break on that note. We will come back to markets and speak about where they are headed with Amit Burdia of Deutsche Bank.